Hello everyone, I'm back with the revision series of class 10 maths. Today I'll be doing quadratic equations as you can see on the board. This covers CBSE as well as ICSE boards both and others also whichever has quadratic. तो quadratic का equation होता है अगर इसका degree 2 है यहाँ पे essentially a should not be 0. So an equation whose degree is 2 is a quadratic equation. इसके solution में 3 possibilities हैं. Okay, degree 2 means maximum number of solutions it will have will be 2. Maximum 2. तो minimum कितना होगा 0 या फिर 1. These are number of solutions I'm talking about. These are the 3 cases. ठीक है. अच्छा, तो 0 solution, let me write like this. Solution में 0 कब होगा, 1 कब होगा और 2 कब होगा, what it means. तो 0 solution पहले उसके पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. पहला फैक्टराइज करो और दूसरा इक्वेशन यूज करो, राइट. सो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द इक्वेशन. ऑल राइट, इसमें ये वाला पोर्शन जो रूट के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट d. ठीक है, तो आई विल जस्ट रेफर हियर this portion as d only. Okay, zero solution मतलब b क्या हो गया, b is less than 0 यानी कि negative. What it means, d is negative यानी b square minus 4ac is negative. इसका मतलब क्या है, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो ये एक्चुअली टच नहीं करेगा x एक्सिस को, तो इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं है. इट डज नॉट टच द x एक्सिस. तो इस केस में कैसा रूट्स होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन. तो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स का कोई वैल्यू आएगा क्या, एक्स का वैल्यू एक्चुअली नॉट रियल होगा या इमेजिनरी होगा. All right, so no solution means d is less than 0. Imaginary roots, this is the graph. That means the graph does not touch the x-axis. One solution when d is equal to 0. All right, discriminant is 0. इसमें one solution. What does that mean? That means it will touch. देखो quadratic का graph will be a parabola, U shape होगा, either facing upward or downward or either sides also होता है. But anyway here either faces up or down, but it will touch the x-axis at one point. Okay, so it has only one solution. One solution, d is equal to 0. One real solution. Fine, there is only one solution or equal solutions, both are same. Here you will see questions mainly like x minus 2 whole square. ऐसा क्वेश्चन है, x minus 2 whole square is a quadratic equation, right? x minus 2 whole square, this is a quadratic equation equal to 0. इसमें x के वैल्यूज क्या आएंगे, दोनों केस में इसको फैक्टराइज करोगे तो x minus 2 is 0. तो दोनों रूट्स कितने हो गए, 2 itself. So one root or two equal roots. All right, that is the condition. And here if the discriminant is greater than 0, then the graph actually means the parabola intersects the x-axis at 2 points. So it has two distinct roots, right? Here two real and distinct roots. This is the meaning of discriminant being negative, 0 or positive. All right. Okay, let us come to some solutions. Here, I would suggest, in case while solving a problem, you're not getting factors, do not spend more than half a minute trying to find factors. Immediately चले जाओ किसमें, ये equation इसका solution में use this and find out. तो square root जानना जरूरी है. Let me see a question like this wherein
I will just do one square root also. I'm taking up word problem straight away. These are ICSE का PYQs जो CBSE के लिए भी valid है. All right. So here we will come across one question which I have pulled up, wherein you will have to find square root of a number. तो वहाँ पे square root का भी revision हो जाएगा in a way. Question says a trader buys X articles. Okay. So number of articles is X. X articles for a total cost of 600. So 600 rupees में उसने X articles खरीदा, तो how many articles did he buy? 600 by X. अब इसमें देखो क्या होगा, इन क्वेश्चंस में ना डिफरेंस ऑफ नंबर दिया होगा या डिफरेंस ऑफ कॉस्ट दिया होगा, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ नंबर ही ले लो मोस्ट ऑफ द टाइम. तो X रुपीज में X आर्टिकल्स ले रहा था 600 में, तो कितना आर्टिकल्स लिया? 600 by X, राइट. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 600 by X. Fine. Now question says if the cost per article were 5 rupees more, the number of articles can be bought for 600 would be 4 less. देखो कॉस्ट का दिया होगा और नंबर का दिया होगा, ठीक है. इक्वेशन कैन बी मेड विथ कॉस्ट और विथ नंबर. विथ नंबर हमेशा ट्राई करो कि नंबर के साथ. अब उसने बोला कि हर एक का कॉस्ट अगर x plus 5 हो गया तो 600 में नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट कैन विल बी 4 लेस. ऑल राइट, 4 लेस. अब इधर देखो ध्यान से, 600 by x माइनस 600 by x plus 5 is equal to 4. हमेशा कोशिश करो टू फ्रेम इक्वेशन लाइक दिस. यहाँ पे क्या होता है, एक कंफर्मेशन आ जाता है कि इक्वेशन इज नॉट रॉन्ग. व्हाई? इफ यू आर केयरफुल, कीप द स्मॉलर डिनोमिनेटर फर्स्ट, द बिगर डिनोमिनेटर लेटर. Are you getting my point? This is the most important point that I'm going to say in this topic. सबसे पहले क्या करना, हमें नंबर लिख लो, उसमें डिफरेंस लेना, या तो कॉस्ट से ले सकते थे या तो नंबर से, जनरली नंबर. तो 600 by x smaller denominator, when the numerators are same, smaller denominator minus bigger denominator, याद रखो, smaller denominator minus bigger denominator will be given. Then you need to solve it. अब इसको solving में भी I kind of always advise take common, simplify and do. That is the usual thing that I say. तो कॉमन ले लेते हैं, 600 आ गया बाहर, 1 by x minus 1 by x plus 5 is equal to 4. अब 4 ones are 4 4, 4 5s are 20, ठीक है. तो 150, यहाँ पे x plus 5 minus x into x plus 5, this is equal to 1, ठीक है. अब क्या करना है, इसको इधर ले जाना और यहाँ पे x cancelled, 15 into 750 is equal to x square plus 5x, right? So we need 5, 75 से, तो पता ही चल गया 75 से 5 मतलब 25 into 3 75, 30. तो x square plus 5x minus 750 is 0. x square plus 30x minus 25x minus 750 is 0. x common, x plus 30 minus 25, x plus 30 is equal to 0. So फिर ब्रैकेट लिखोगे तो x में भी minus 30 और 25 नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 25 आंसर. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. I'll be framing equations. यहाँ पे जरूरत था क्या रूट ओवर का? लेट मी सी. नहीं, ये तो आ गया ना फैक्टर्स. रूट ओवर जहाँ पे वैसा भी कर देंगे सो दैट स्क्वायर रूट का भी रिविजन हो जाए. एक क्वेश्चन में है, ठीक है, देखते हैं. नेक्स्ट, अ होटल बिल of the number of people for an overnight stay is 4800. Okay, hotel bill is 4800. If there were 4 people more, again number of people से लिया है 4 more, तो पहले number of people ले लो, number of people ले लो x, ठीक है. अगर x people हैं, ओवरनाइट स्टे में 4800 हुआ है, तो हर एक के हिस्से में कितना आया? हाउ मच डिड ईच हैव टू पे? सो ईच पेज 4800 by x.
है ना. 4800 is the total amount they had to pay. So each paid 4800 by X. Now the question says, if there were 4 people more, bill each person had to pay would have reduced by 200. 4 people more, तो कितना देंगे? Each would pay 4800 divided by X plus 4. 4 people more, right? अब difference, each would have paid 200 लेस, यानी कि डिफरेंस तो दिया हुआ है, बिना सोचे स्मॉलर डिनोमिनेटर पहले लिखोगे, न्यूमरेटर बीइंग सेम, स्मॉलर डिनोमिनेटर माइनस बिगर डिनोमिनेटर, क्वेश्चन इक्वेशन विल नेवर गो रॉन्ग. समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से इक्वेशंस बनाओ, डिवाइड करो x से एंड डू, डिफरेंस दिया होगा, सम डिफरेंस विल बी गिवन, बस वो यूज करो. इसमें पहला स्टेप क्या करते हैं? 4800 कॉमन, 1 by x minus 1 by x plus 4, दिस इज 200, कैंसिल करो, 224, है ना. अब ये क्या होता है? 24 तो है यहाँ पे x plus 4 minus x is equal to 1, right? is equal to, नहीं ये चला जाएगा ना उधर, x into x plus 4, ये कैंसिल हो गया, 24, ठीक है, is x square plus 4x. now you can solve, x square plus 4x minus 96 is 0. 96 से हमें 4 चाहिए, right? तो I think you can do now, factor ले लो, factorize and solve. So this I am not solving, you can do that. Next, I have taken a few questions from this was ICSE 2000. हर में देखना, I would make equations exactly as I have been making. अब देखो क्वेश्चन है, एयरप्लेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स, डिस्टेंस दिया हुआ है 400 किलोमीटर्स. इन सच क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग कि उस एयरप्लेन ने स्पीड बढ़ा दिया तो कम टाइम लगा, स्पीड कम कर लिया तो ज्यादा टाइम लगा, एंड सो ऑन. तो हमें क्या करना है? 2 टाइम दिया होगा, दिस विल बी गिवन, राइट? 2 टाइम दिया होगा, ऑलवेज यूज दिस, डिफरेंस बिटवीन टाइम विल बी गिवन. टाइम निकालो, स्मॉलर डिनोमिनेटर माइनस बिगर डिनोमिनेटर. यहाँ पे देख लो डिस्टेंस सेम है, क्या दिया हुआ है कि x किलोमीटर से जा रहा था, पहला स्पीड उसका था x किलोमीटर्स पर आवर. अब क्या हुआ, उसने स्पीड क्या किया? इंक्रीज कर दिया बाय 40, ठीक है. तो अब स्पीड क्या हो गया? अब स्पीड हो गया x प्लस 40 किलोमीटर्स पर आवर, राइट? Time is distance by speed. So distance by speed minus distance by speed, this is given to be 2 hours. एक तो ये hours में है, अगर minutes में होता तो सबसे पहले hours में करोगे. अब इसमें बिना सोचे पहले smaller denominator, कब कम लिया कब ज्यादा लिया हमें नहीं देखना, smaller denominator minus bigger denominator. Clear? Okay. First step common ले लेते हैं, common. 1 by x minus 1 by x plus 40 is equal to 2. 200 कैंसिल करो, यहाँ 1. अब क्या होगा? This one I'll solve for square root revision sake. एक ही पैटर्न के इक्वेशंस बनते हैं. ओके, सो 200 here we have x plus 40 minus x, और ये उधर चला जाएगा x times x plus 40, correct? x gets cancelled, 4 2s are 8 is equal to x square plus 40x. So the equation is x square plus 40x minus 8000 is 0. Now listen carefully. इसका फैक्टर्स निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलने वाला, बिकॉज आई ऑल्सो ट्राइड एंड देन आई डिड दिस. तो जब नहीं निकलेगा ना, डू नॉट स्पेंड मोर देन हाफ अ मिनट, स्ट्रेट अवे क्या करना है? स्ट्रेट अवे x लगाएंगे. x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, 4 8 32, है ना, 4ac
अपॉन 2। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे 4 निकलते हुए दिख रहे हैं बाहर, 2 से हट जाएगा, लेट मी डू दैट। तो ये तो 4 इंटू 10 है, ये प्लस माइनस यहाँ से एक 4 ले आते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू 100, 4 इंटू 400, बाहर ही ले जाते हैं ना 4, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लेट मी डू दैट, 4 बाहर आके यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ से 4 गया है तो 400, और यहाँ से 4 गया है तो 8000, करेक्ट। और फिर नीचे 2 है, यहाँ से भी 2 बाहर लोगे तो कैंसिल हो गया, -20 प्लस माइनस रूट 8400, राइट, 8400। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जस्ट टू शो यू हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, आई विल डू दैट। 8400 का स्क्वायर रूट क्या करते हैं, राइट से 2 डैशेस लेते हैं, है ना, फिर क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट नंबर, 9 9s are 81, सब्ट्रैक्ट 3, टेक डाउन 2, 9 को डबल करो 18, करेक्ट। अब यहाँ पे जो नंबर लिखोगे वही नंबर यहाँ लिखना है, तो 2 होगा तो उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 होगा तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 से तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये आ गया, सब्ट्रैक्ट 9, हियर 9 सो 1, है ना, 1 और यहाँ से 1, फिर पॉइंट डालो और यहाँ 2 zeros डालो, है ना, फिर इसको डबल करो 182, राइट समथिंग हियर दैट विल गिव अ क्लोजर नंबर, तो 11 है, 7 8 जा 56, 7 से ज्यादा हो जाएगा ना, 7, if I write 7 and multiply by 7 तो वो ज्यादा हो जाएगा, 48, हाँ, तो 0.6, and then you can continue one more, so 91.6, तो माइनस आंसर क्या हो गया, -20 प्लस माइनस 91.6, अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता स्पीड, सो 91.6 माइनस 20 कितना हो गया, 71.6 किलोमीटर्स पर आवर, गॉट इट, ऑलराइट। सो नेक्स्ट इज, तो स्क्वायर रूट भी करा दिया मैंने, तो इस तरह के क्वेश्चंस और ऐसे ही पैटर्न में बनाते जाओगे इक्वेशंस। लेट मी सी, एक और एक दो ले लेते हैं, ये तो एयरप्लेन हो गया, हाँ, नॉट दिस, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस, सेम टाइप हो गया, चलो वन मोर आई टेक। सो द क्वेश्चन सेज 5 years ago a woman's age was square of her son's age। एज क्वेश्चन में क्या करो, ऐसे लिख लो प्रेजेंट, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है इन 2 इक्वेशंस आल्सो, प्रेजेंट दिस विल बी माइनस समथिंग एंड दिस विल बी प्लस समथिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट एज यहाँ पे मदर एंड सन है, मदर एंड सन, तो मदर का प्रेजेंट एज x ले लेते हैं, सन का प्रेजेंट एज y ले लो, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years ago अ वुमन्स एज वाज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, तो 5 years ago और बाद में दिया हुआ है 10 years hence, all right, make this column and you're sorted। 5 years ago दोनों का एज निकालो पहले, before making equation first complete this columns, then 10 years hence दोनों का एज निकाल लो, 10 years में कितना होगा, correct। once you have filled this columns, now make equation। 5 years ago woman's age was square of her son's age, woman's age was square of her son's age, first equation। second equation में 10 years hence her age will be twice that of her son, 10 years hence her age will be twice that of her son, second equation। to solve this, see ये स्क्वायर के अंदर y को हटाना not tough, but यहाँ ले लो x की जगह, ठीक है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x कितना हो गया 2y प्लस 10, राइट, सब्स्टिट्यूट हियर, और क्वाड्रेटिक मिल गया, कितना था 2y प्लस 10 था ना, ओके, -5। नाउ द पॉइंट व्हाट आई एम मेकिंग हियर इज, सब्स्टिट्यूट कर लो और सॉल्व, पॉइंट आई मेड हियर इज प्रेजेंट, ago and hence, उसको complete करो, frame equation and solve, all right। let's see if any other question I have pulled up, okay, I think that is enough, this was ICSE 2007,
Hope these tips were useful. I would be making arithmetic progression video next. So please watch out for the next video. Thank you for watching.